Good morning, students. Welcome back. Let's start. When Sitaram asked Nathu that why he is so angry, Nathu said, said him, don't raise such dust here and there. Then Nathu replied, don't talk about it. He asked him, are you annoyed because they are refusing to pay you another 5 rupees a month? वो उसको पूछता है कि क्या तुम इसलिए अनॉयड हो कि बैंक तुमको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने से पे करने से रिफ्यूज़ कर रहा है. Then Nathu replied, I don't want to talk about it. I haven't received my regular pay 2 months. My regular pay is also due. 5 रुपीज़ की तो बात ही मत करो बिकॉज मेरा अभी तक 2 मंथ का सैलरी पे नहीं किया गया है. उन्होंने मुझको 2 मंथ की सैलरी पे नहीं की है अभी तक. देन ही सेड आई एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे मुझको मेरे पैसा मिलता है आई विल लीव दिस जॉब, मैं इस जॉब को छोड़ दूँगा. ऐसा नाथू ऐसा एंगर में बोलता है, गुस्से में बोलता है वो ये बात. सीताराम टुक इट सीरियसली, सीताराम उसको सीरियसली लेता है. एंड ही सेड हिम दैट डोंट वरी नाथू, आई विल फाइंड अ जॉब फॉर यू. देन सीताराम left the way. Sitaram went to his customers one by one, door to door. सीताराम जो कि वॉशरमैन था अपने कस्टमर के पास जाता है वन बाय वन. देन ही रीच्ड हिज फोर्थ कस्टमर. जब वह अपने फोर्थ कस्टमर के पास पहुंचता है, द फोर्थ कस्टमर नेम वॉज मिसेस प्रकाश, अ वुमन. Mrs. Prakash was sweeping something. He said he discussed Sitaram that it is very difficult to sweep something. Then Sitaram suggests him that he knows a sweeper boy who is looking for work. He was talking about Nathu. वो सीताराम मिसेस प्रकाश को बोलता है कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो कि जॉब के सर्च में है. देन मिसेस प्रकाश and he also told her that he works in the town bank of said Govind Ram, and they are not giving him his pay. The bank is not giving him his pay and he wants to leave from there. वो उसको बोलता है that Nathu is going to leave the job because he is not getting his pay from there. वो उसको पे नहीं मिल रही है, इसलिए वो बैंक को छोड़ना चाहता है. Oh, is that so? Mrs. Prakash said. And she asked him why are not they paying him. वो उसको पे क्यों नहीं कर रहे हैं. सीताराम replied they must be short of money. ऐसा हो सकता है कि शायद पैसों की शॉर्टेज हो, बट देयर वॉज नथिंग जस्ट लाइक दिस. ऐसा कुछ भी नहीं था. और सीताराम अपने मन से ही र्यूमर्स बनाता जा रहा था. बैंक हैड इनफ मनी टू पे समवन, बट देयर वॉज द रीज़न दैट सेड गोविंदराम was not there to pay Nathu. But Sitaram make this thing as a rumor. When Mrs. Prakash listened this, she laughed and she said Sitaram that tell the boy to come to see her. When will he is free?
Then Sitaram became very glad that he helped his customer, he also helped his friend. After that Mrs. Prakash set out to market. मिसेस प्रकाश मार्केट जाने का सोचती हैं और एंड शी वेंट आउटसाइड. देन शी मेट हर फ्रेंड मिसेस भूषण हु वॉज सिटिंग इन द शेल्टर ऑफ टेमरिन ट्री, जो कि मिसेस भूषण टेमरिन ट्री के शेड में बैठी थी. देन मिसेस प्रकाश then the rumor that Sitaram told to Mrs. Prakash was going to spread. Now Mrs. Prakash start to say, Mrs. Prakash said, Mrs. Bhushan, do you know that said Govindram's bank is going to collapse? The bank can't even pay its employees. वो उनको बोलती है कि क्या तुमको पता है कि सेठ गोविंदराम का बैंक डूबने जा रहा है एंड उन्होंने अब तक अपने एम्प्लॉयज़ को पे भी नहीं किया है. आई हर्ड दिस कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर बॉय हु हैज़ नॉट रिसीव्ड हिज पे फॉर 2 months. मैंने ये कंप्लेंट वहाँ के स्वीपर बॉय से सुनी है जिसको अभी तक 2 month का सैलरी नहीं मिला है. लिसनिंग दिस मिसेस भूषण exclaimed, if they can't pay a sweeper boy they must be in a bad way. अगर वो एक स्वीपर बॉय को पे नहीं कर सकते तो वो कैसे किसी का पैसा वापस कर सकते हैं. देन मिसेस भूषण आफ्टर लिसनिंग दिस मिसेस भूषण रीच टू हिज हस्बैंड हु वॉज इन द इलेक्ट्रिकल गुड शॉप. Then Mrs. Bhushan said her husband, do you know the town bank is going to collapse? Mrs. Bhushan asks, which bank? Said Govindram's bank. Then Mrs. Bhushan said Govindram's bank. Then after this there was a Mrs. Bhushan said him, do you have any account in this bank, in that bank? Then Mr. Jugal Kishore replied, I don't have any account, but my friend has an account in that bank, whose name was Faiz Hussain. Faiz Hussain was a barber, and Faiz Hussain was the neighbor of Mr. Jugal Kishore. Then Mr. Kishore went to Faiz Hussain and told him about the bank. Then Faiz Hussain became very angry, and in anger he was a barber. In anger he cut his customer ear, small cut on his customer ear. वो बहुत ही काफ़ी डिस्ट्रेसफुल हो जाता है और उससे जो उसका कस्टमर होता है उसके कान पर कट लग जाता है. देन दिस र्यूमर स्प्रेड इन ऑल द टाउन. ये अफवाह पूरे टाउन में फैल जाती है. Then one day everyone decided to go to bank and asked for their money. One day सब डिसाइड करते हैं कि
दे विल गो टू बैंक एंड आस्क्ड फॉर देयर मनी। वो बैंक जाएंगे और अपना पैसा बैंक से मांगेंगे। देन दे रीच टू बैंक। देयर वॉज अ क्राउड बिफोर द बैंक। अब बैंक के आगे क्राउड गैदर हो चुका था। मैनी पीपल्स वर देयर। They were shouting on the bank, give us our deposit। हमको हमारा डिपॉजिट दो। वो बैंक पर शाउट करने लगते हैं। आफ्टर दैट द बैंक मैनेजर, एवरीवन इन द बैंक वॉज शॉक्ड व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। कि बाहर बैंक में किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। एंड दे वर वेरी क्यूरियस कि ऐसा कैसे हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। देन मैनेजर केम आउटसाइड टू टॉक द क्राउड द पीपल। मैनेजर बाहर आता है और वो उस क्राउड को सेटिस्फाई करता है। ही सेड दैट द बैंक हैज़ इनफ मनी टू पे यू बट नॉट नाउ। बैंक के पास इतना पैसा है कि वो आपको पे करे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बट लोग ऐसा नहीं मानते। द क्राउड डिड नॉट बिलीव इट हिम। वो उसको बोलते हैं गिव अस आवर मनी वी वांट नाउ राइट नाउ। कि हमको हमारा पैसा अभी चाहिए। एंड द क्राउड बिगेन throw the stones etc। अब जो है क्राउड काफ़ी अनॉयड हो चुका था और वो बैंक पर स्टोन्स फेंकना स्टार्ट कर देता है। देन बैंक मैनेजर वेंट इनसाइड एंड शट द डोर। बैंक मैनेजर अंदर चला जाता है और डोर बंद कर देता है। देन द बैंक मैनेजर कॉल्ड द पुलिस। देन द पुलिस अराइव्ड। देन दे क्लाइम्ड द स्टेप्स ऑफ द बैंक। जैसे ही पुलिस बैंक के तरफ आती है, दे पुश द क्राउड बैक अंटिल द पीपल बिगेन फॉलिंग ओवर ईच अदर। वे क्राउड को पुश करती है, भगाने की कोशिश करती है और जो लोग हैं एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। ग्रेजुअली एवरीवन डिस्पर्स्ड। फाइनली एवरीवन डिस्पर्स्ड। सभी इधर उधर भागने लगते हैं और वापस जाने लगते हैं। एंड दे वर शाउटिंग दैट दे वुड बी बैक इन द मॉर्निंग। और वो ये भी वार्निंग दे करके जाते हैं कि वो मॉर्निंग में वापस आएंगे अपना पैसा लेने। स्टूडेंट, दिस वॉज अ र्यूमर ओनली। ये अफवाह थी कि बैंक इज़ गोइंग टू कोलैप्स। बैंक डूबने वाला है, जो कि सीताराम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा र्यूमर स्प्रेड हुआ था और क्राउड स्ट्रीट तक आ चुका था अपना पैसा बैंक से लेने। ये सब एक र्यूमर की वजह से हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाथू अराइव्ड टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। नाथू अपना काम करने वापस आता है बैंक पर। एंड ही डिड नॉट नो अबाउट दिस। उसको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता होता है। ही सा दैट देयर वर ब्रोकन ग्लासेस आउटसाइड द बैंक एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स। और जो थे स्टोन्स वगैरह पड़े हुए थे स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर।
ही रेज्ड इन हिज हैंड इन ऑर्डर, वो अपने हैंड रेस कर देता है, उसको ऐसा लगता है दैट देयर इज़ अ रॉबरी, द बैंक हैज़ रब्ड, बैंक में रॉबरी हुई है। एंड ही क्राइड गुंडाज हुलीगान्स, वो क्राइड करता है कि अब तो लगता है कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इट वॉज़ बैड इनफ बीइंग पेड इरेगुलरली, एक तो पहले से ही मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल रही है, नाउ आई मस्ट सफ़र एन इंक्रीज ऑफ वर्क, आज मुझे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज देयर वॉज सो मच डस्ट हियर एंड देयर, काफ़ी वहाँ पर डस्ट था, स्टोन्स पत्थर थे, ग्लासेस थे। ही बिकम वेरी एंग्री टू सी दिस, ही स्मैक द स्टेप्स विद हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज़, वो अपनी ब्रूम उठाता है और उन सबको बिखरी हुई चीज़ों को कलेक्ट करने लगता है, साफ़ करने लगता है। देन सीताराम केम टू हिम, गुड मॉर्निंग नाथू द वॉशरमैन सन, सीताराम जो वॉशरमैन का बेटा था वो नाथू के पास आता है। And he asked him, are you ready to take up a new job from the first of next month? Then he said to him कि क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट मंथ से अपना न्यू जॉब के लिए? नाथू डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, नाथू को समझ में नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। Then he said, you will have to, I suppose now that the bank is closing, वो उससे बोलता है कि तुम्हें न्यू जॉब ढूंढना ही पड़ेगा बिकॉज द बैंक इज़ गोइंग टू क्लोज, बैंक क्लोज होने जा रहा है। देन नाथू वॉज शॉक्ड, व्हाट डिड यू से, द बैंक इज़ गोइंग टू क्लोज, ही वॉज शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस। सीताराम बोलता है, हैवंट यू हियर्ड, क्या तुमको नहीं पता, द बैंक्स गॉन बैंकरप्ट, it will be better if you it will be better to demand your money to the bank, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम भी अपने पैसे के लिए बैंक से डिमांड करो। देन नाथू, देन सीताराम went to his way, नाथू स्टार्ट स्वीपिंग द स्टेप्स एंड मटरिंग हिमसेल्फ, नाथू स्वीपिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपने से म्यूटरिंग करने लगता है। जब उस स्वीपिंग उसकी फिनिश हो जाती है, ही सेट डाउन ऑन द बॉटम स्टेप टू वेट फॉर द मैनेजर, वो मैनेजर की वेट में वहीं बैठ जाता है। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, वो अपने आप को डिटरमाइंड करता है दैट ही विल गो विद हिज पे, कि वो अपने पे लेकर ही जाएगा। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, वो अपने से सोचने लगता है कि किसने सोचा था कि इतना बड़ा बैंक ऐसे डूब जाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने से कहता है, एंड लुक थॉटफुली अक्रॉस द स्ट्रीट, आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपन्ड, मैं शॉक्ड हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक डूब जाने वाला है। एंड नाथू वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, एवरीथिंग वॉज बिकॉज ऑफ अ स्मॉल रूमर दैट हैड स्प्रेड, एंड ये सब एक र्यूमर की वजह से हुआ था जो कि नाथू के मुंह से निकल करके पूरे टाउन में फैल गया था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ नाथू, बट नाथू डिड नॉट नो अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, द स्टोरी हैज़ एंडेड नाउ। आई होप that you have understood whatever I explained you. If you have any doubt, you can consult me. Okay, thank you.